Okay, so good afternoon. Uh, Today we will see about the topic that is we already seen the topic about the intervillain. So today we will see the topic of the intervillain, but we'll be using SVI. Now, what is SVI? SVI is called switch virtual interface. So through interVLAN, through switch virtual interface, today we will see that interVLAN using switch virtual interface in packet tracer. Okay. So first starting for then we will know that already we have seen that what is the VLAN and what is the interVLAN. So for interVLAN by traditional method or by the interVLAN using router on the stick method, we have already seen that in previous classes, in previous lab classes, we have already seen that. But these things today we will see the another interVLAN concept, that interVLAN using the switch virtual interface in packet tracer. So before starting, let's recap one time that VLAN, what is the VLAN? So basically VLAN stands for virtual local area network. That is the stands for VLAN stands for the virtual local area network, and VLAN is basically used for security purpose. That's why, and VLAN is also a layer 2 security, where VLAN basically do what? VLAN basically divide a single broadcast domain. Basically, it divide a single broadcast domain into our multiple broadcast domain. By default, all parts of the switch are on the VLAN 1. That means VLAN is what? For what use we uses the VLAN? Like this, if we say that our VLAN is, let's say there are the two department present, that let's say there is a marketing department present and another one is the sales department. Like this, two department presence, and they are सर using a कोई है ही नहीं सर क्लास में हम्म कोई नहीं है सर ठीक है, तुम हो तो तुम सुनो, और क्या है, सर तुम ही सुनो, और क्या होगा। तुम लोगों का क्यों क्लास मतलब करने का क्यों नहीं है हमको। डॉली है, डॉली आए थे, डॉली का नेटवर्क कनेक्शन कुछ इशू हो रहा है, मगर बाकी लोग का क्या हुआ है। सर प्लेसमेंट का तैयारी कर रहा है सर ठीक है, बट क्लास तो जैसे चल रहा है ना, तो क्लास क्यों नहीं करने का क्या है, पता पता नहीं। उसमें प्लेसमेंट का तैयारी तो ठीक है, बट क्लासेस भी तो करना है ना। तो ठीक है, हम जो जितना देर तुम लोगों का जो टॉपिक है, तो टॉपिक तो दिखाते हैं ना। तो ठीक है सर so basically, VLAN concept is we can divide mainly in the VLAN concept. What we do in VLAN, we divide a single broadcast domain into multiple broadcast domain. So we divide like that. That means like if there is a in an organization, let's say in an organization present, and in that organization
let's say there are two departments, that is the marketing and another one is the sales. So they are connected in a single switch. Let's say they are connected in a single switch. So some properties or some securities we use there so that the marketing department cannot communicate with the sales department. Though they are present inside the same switch, though they are connected with the same switch, but we are giving some properties or giving some securities that they are not able to communicate with each other. This is the concept we do with the VLAN. And inter-VLAN is what? Like example, say for inter-VLAN, that if we have like group A, group B, group C, group D, group E, like that, we have 10 groups. Let's say we have 10 groups, or we can say that, for example, let's say we have 10 departments present. Now we do not want to give communication to the all department present and to all departments separately. Let's say for there is a department that is the finance department. Now finance department will not communicate with the marketing department. So like this, you want to use some properties that the finance department, let's say, it will not communicate with the marketing department. Now after this, something we want to change, that let's say there is 10 department present, so another department in an organization, that is HR department. Now this HR department wants to communicate with the sales department present. So later on, let's say it is decided that the marketing department will communicate with HR department. But what we have already used the VLAN concept. So using VLAN concept means no departments will communicate with each other. We are using this, so no the departments will communicate with each other. So like this we have used, but now we want to change something. Now we want to change that later on it is decided that it will be communicate this one department, that is the HR department. Let's say it wants to communicate with marketing department. So what we will do, then we will use the concept of the inter-VLAN. That means inter-VLAN is used for what? Inter-VLAN is used so that the two departments will communicate with each other. So just the opposite. In VLAN, what we have used? In VLAN, that no two departments will communicate with each other, though they are present and though they are using the same switch. But here, what we do in the inter-VLAN concept, we have inter-VLAN concept that two departments will communicate with each other. This is the concept of the inter-VLAN. So we have already covered that. But inter-VLAN, in the case of inter-VLAN, we have already seen the two methods we have already seen to implement the inter-VLAN concept. So first one is the traditional method. We already seen that. And second one is the router on the stick method. We have already seen in the previous classes. If you see in the lab, we have already done that. Now, the third concept and the third way, three ways we can do the inter-VLAN. And this third way is the switch virtual interface. This third way is the switch virtual interface. So inter-VLAN by using switch virtual interface, today we will see about it. So let's move to the implementation, that how it can be implemented. So let's move on to that. So we will open the Cisco Packet Tracer. So we will open the Cisco Packet Tracer here, and now we will make this inter-VLAN by using switch virtual interface in Packet Tracer. So let's move to it. Now what we will do, we will first, okay, so from here, you see, from here we will go to switch, and from switch we will select. Now here we have to use multi-level switch, because for doing the switch virtual interface we have to use multi-level switch. We have to use the
multi-level switch. So that means we will use the multi. So from here we go to switch, and from switches we select multi-level switch. Now this switch, that is 2960 PT switch, then PTMT, this all are the single level switch. This all are the single level switch, but we require the multi-level switch. So we choose this 3560 24 PS, or between them any one you can choose. I have choose this because these two are the multi-level switch and others are the single level switch. These are the single level switch. So we have chosen it, that 3650 24 PS. So this multi-layer switch, here you can see that it is mentioned the multi-layer switch. So we want that two departments, we will create two departments. So two department means, let's say this is a system present and this is a system. Okay, so we take two systems here, and from here also we are taking. Now that means we want to create that this is a department, and in that this department two systems are present, and in this department also two systems are present. So let's say make the connections here now. So we'll make the connections right now. We'll make the connections. So this is a connection we make. Then So from where you, another connection. So from where you've taken this multi yes. From you see from left side, in the left side corner there is a switch, there is a button present, switch. You see there is a button that is switch. It is switches. Okay, and from, if you click that switch, you will see that the number of switches are present here. And between this 346024 PS and 365024 PS, these two are the multi-layer switch. So between this you can choose anything. Okay, so this or this, these are the multi-layer switch present. Okay, Afrin, मिला है? हाँ मिल गया. Okay. So this is already taken, and now we are making the connections. So like this we make a connection, and also from this we are making the connections. Okay, so connections are made. Now we want that these two systems are in a department, these two systems are present, and in another department these two systems are present. We want to like this. So let's draw a rectangle, and from select fill color, from there you select the fill color. So let's say I take this color and put it here. Okay, then next I will again take another color to specify that they are the two different departments. Okay, now from here we will choose this. From here we will place a note, choose, and here we will write VLAN 10. Let's say we are naming at sales. So that means this is the sales department, VLAN 10 sales. So these two systems are present in the sales department. Same as that, here also we will write VLAN 20, and let's say we give the name marketing. Let's say we give the name as the marketing.
Okay, so we already give it as a name. Now what we have to do, we have to assign the IP address. So first we have to assign the IP address. So first we will use a, let's say I will use a class C type IP address. So 192, because I have already discussed in the class the range from 192 to 227. Between them, if I choose, then it will be in the range of class C IP address. So we are choosing, let's say we are choosing a class C type IP address. Class C type IP address because class C range is from 227, from 192 to 223. This is the range. So 192.168.10.2. Okay. So now we will go inside and we will go to the desktop and IP configuration. So we'll write 192.168.10.2. Now the subnet So the mask will screen is automatically not. came. So the screen is not visible. Huh? Maybe I've Screen is shared not only one visible. screen. So only one screen is visible. The thing Okay, which okay. you're doing. Yes. Okay, okay. Now it is visible? Yes. In that time, I have not shared the screen. I have only shared this portion. That's why the problem is happening. Okay, so the subnet mask. Now it is clear that why this subnet mask is 250. तुम क्लास किए थे आफरीन, तुम क्लास किए थे जो क्यों 255.255.255.0 सबनेट मास्क होता है? नहीं, पता नहीं। अच्छा, ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हम क्लास में आईपी एड्रेस जब क्लास में पढ़ाए थे उस टाइम हम डिस्कस किए थे कि क्यों हम इसका इतने देर तक हम लोग जानते कि हाँ हम बोल के आए हैं कि 255.255.255.0 क्लास सी मतलब ही ऐसे लिख दोगे, बट ये चीज नहीं है। चीज क्या है कि अगर हम लोगों का जो टोटल हम लोगों का जो क्लास ए क्लास बी हम लोगों का टोटल कितना क्लास है कि कितना क्लास का आईपी एड्रेस प्रेजेंट है? 5 टाइप का आईपी एड्रेस प्रेजेंट है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। ठीक है, अब क्लास ए जो है ना, हम उसको लिखते हैं, मानो कि क्लास ए जो आईपी एड्रेस है क्लास ए। अब क्लास ए का आईपी एड्रेस में हम लोगों का एक नेट आईडी होता है, ओनली वन नेट आईडी, 1 बाइट नेट आईडी। अब ये जो हम लोग का आईपी एड्रेस IPv4 जो है, IPv4 हम लोगों का 32 बिट्स है। ठीक है, IPv4 जो है मेरा 32 बाइट्स है, सॉरी नॉट 32 बाइट्स, 32 बिट्स है। अब 32 बिट्स को तुम बाइट में कन्वर्ट करो, कितना होता है? 32 बिट्स को हम लोग अगर बाइट में कन्वर्ट किए तो एक हम लोग का एक बाइट के लिए कितना है? 8 बिट्स। तो हम लोग का कितना होगा? 4 बाइट वही होगा, क्योंकि एक बिट के लिए हम लोग का एक बाइट के लिए 8 बिट्स होता है, एक बाइट के लिए 8 बिट्स, तो हम लोग का कितना होगा? 4 बाइट होगा। अब ये जो है 4 बाइट, अब एक एक पोर्शन जो है ये टोटल 4 बाइट मतलब कैसे डिवाइड है? 4 फील्ड में डिवाइड है, फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट। अब क्लास ए जो है, क्लास ए जो है उसके लिए हम लोग का फर्स्ट बाइट जो होता है, फर्स्ट बाइट हम लोग का नेट आईडी होता है, फर्स्ट बाइट हम लोग का नेट आईडी होता है, और बाकी जितना मेरा तीनों बिट है, बाकी जितना मेरा तीनों बिट है वो तीनों बाइट मेरा होस्ट आईडी होता है, तीनों बाइट मेरा
होस्ट आईडी होता है 1 बाइट। तो अब 1 बाइट मींस क्या है, हम लोग का 8 बिट्स। सो हम लोगों का क्या है कि 8 बिट्स जो है 8 बिट्स नेट आईडी है, और 3 बाइट, हम लोग का 3 बाइट मतलब क्या है 24 बिट्स। सो 24 बिट्स हम लोग का कितना, 24 बिट्स हम लोग का होस्ट आईडी होता है। ठीक है, तो अब अगर मेरा जो 8 बिट्स है, 8 बिट्स जो है वो मेरा नेट आईडी है, ठीक है, और बाकी जो मेरा 24 बिट्स है वो 24 बिट्स मेरा क्या होगा, 24 मेरा होस्ट आईडी होगा। अब जो सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट है, सबनेट मास्क जो है फाइंड होस्ट आईडी एंड नेट आईडी, तो हम लोग का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है n बिट्स का, तो दैट मींस हम लोग का n जो है क्लास A के लिए हम लोग का n होगा 8 बिट्स, क्लास A के लिए हम लोग का n बिट्स होगा, और 32 माइनस n, क्योंकि हम लोग का IPv4 जो एड्रेस है वो 32 बिट्स है। अब 32 माइनस n जो होगा दैट मींस 32 माइनस n हम लोग का 24 बिट्स, सो 24 बिट्स। तो ऐसे हम लोग क्या है सबनेट मास्क निकालते हैं। अब सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट में क्या है कि वंस फॉलोड बाय जीरोस, वंस फॉलोड बाय जीरो, ये होगा। अब क्लास ए के लिए क्या होगा, मेरा 8-1 बैठेगा, 8-1 क्लास ए के लिए हम लोग का 8-1 बैठेगा, एंड 1 फॉलोड बाय हम लोग का क्या होगा 0 होगा, 1 फॉलोड बाय 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट्स 1 होगा, एंड 8 बिट्स 1 को क्या है हम लोग का 24 बिट्स 0 फॉलो करेगा। तो इसीलिए क्या है क्लास ए का एड्रेस जब हम लिखते हैं, अब ये जो ऑटो 1 है इसको तुम अगर कन्वर्ट करो बाइनरी फॉर्म में तो देखोगे 255 आता है, इसलिए 255 आता है। तो अब ऑटो 1 के लिए क्या है, ऑटो 8 करके मेरा ये एक सेक्शन बनेगा, तो इसलिए 255.0.0.0 क्लास ए के लिए होता है। और जब क्लास सी, ये जो आईपी एड्रेस क्लास सी का आईपी एड्रेस, क्लास सी में क्या होगा, क्लास सी में मेरा 24 बिट्स, 24 बिट्स मेरा नेट आईडी होता है, और 8 बिट्स जो है 8 बिट्स मेरा होस्ट आईडी होता है, 8 बिट्स मेरा होस्ट आईडी। तो मतलब क्या होगा 24 बिट्स मेरा 1 फॉलोड बाय 8 बिट्स 0। अब 24 बिट्स 1 मतलब क्या है, उसको ऑटो 8 करके सेक्शन बनाए तो 255.255.255, और लास्ट जो ऑटो 0 होगा उसके लिए 0, तो इसलिए 255.255.255.0। ये है कॉन्सेप्ट। तुम क्लास नहीं किए थे इसलिए हम तुमको समझा दिए कि हम पहले जो बोलते हैं कि हाँ ओनली हम ऐसे लिख देते कि ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा सबनेट मास्क, बट सबनेट मास्क निकालने के लिए ऐसे हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया Yes, sir. Yes. आफरीन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये हम लोग क्या है उसका सबनेट मास्क को बिठा दिए। अब डिफॉल्ट गेटवे जो है, डिफॉल्ट गेटवे हम लोग डिफॉल्ट गेटवे देंगे 168.10.1। ओके, तो ये हम लोग फास्ट वाला एड्रेस दे दिए। नेक्स्ट के लिए भी ऐसा करना होगा। तुम लोग बाकी लोग कहाँ गए बोलो तो, कोई क्लास नहीं कर रहा है, और क्लास सही, मुझे भी कम नहीं करते पता हैं चल हम रहा लोग। है। पता उनको नहीं। मतलब क्लास ही करने नहीं आने चाहते हैं कि पता नहीं, सब बहुत ऐसा रिलक्टेंट है सीख सर। गया है कि पता सब नहीं क्या क्या सोच ही लिए कि है। हाँ बहुत कुछ हो तो गया। सब स्कॉलर बन गए हैं। वही तो देख रहे हैं कि मतलब जैसे अब क्लास ही नहीं करने आते हैं कोई। हम्म,
अब हम आज तो और भी कितना सोचे थे कितना कराएंगे, बट कोई तो नहीं है, क्या करेंगे, तुम हो तो इसलिए हम दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, जो हम लोग करने सर चाह रहे हैं आपका वो आपका दिखा आपका देते हैं बस। फेवरेट बट ये स्टूडेंट क्लास आ में गया। क्या है? सर आपका फेवरेट स्टूडेंट आ गया। कौन? उज्जवल। अरे नहीं। अच्छा सर, आज आज आप फैसला करिए, उज्जवल फेवरेट है या मैं। अरे सभी सब फेवरेट बराबर है फेवरेट सर। कुछ नहीं है, सभी अच्छे हैं, ठीक है। सब सभी बराबर है, कोई फेवरेट नहीं, सभी बराबर है, सबका ही सेम वैल्यू है, ठीक सर है। बस आप कर कोई दिए ऐसे ना कुछ सर, नहीं आप है, सबका ही छोड़िए सर आप। सबका ही सेम वैल्यू है, कोई ये नहीं है, सबका ही सेम है। तुम लोग का ये है कि तुम लोग आते हो क्लास वगैरह करते हो, बट बाकी लोग का क्या हो पता नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा देखते हैं क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या देखने के लिए आते हैं, कभी कभी घूमने के लिए कोई कोई, ठीक है घूमते ही है, घूमने के लिए आते हैं, जब घूमिए, क्या बोलेंगे इसमें आप। तो ठीक है, इसका आईपी एड्रेस हम असाइन कर चुके हैं, तो लेट्स से इसका भी आईपी एड्रेस असाइन करना होगा ऐसे। तो इसका देते हैं 20 है, तो 192.168.20.2, तो इसका आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग 168.20.2, और इसका गेट सर है ये एसेंचर का मेल हमको नहीं आया 192.1। सर। ये तो सुरेश भी कुछ टाइम पहले फोन किया था, और सुरेश मुझे दोपहर में फोन किया था कि एक्सेंचर का मेल नहीं आया बोल के। ये एक काम करो, इसके साथ बात करो, देवू सर से बात करो, प्लेसमेंट रिलेटेड तो देवू सर से बात कर लो एक बार, ठीक है, उससे प्लेसमेंट का बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो एक बार देवू सर से अच्छा बात सर, कर लो उनसे बात करना होगा। इसके लिए। क्योंकि वही कॉलेज में आ देखते रही हैं है कि क्या सर प्लेसमेंट एसेंचर? के बारे में। ना, कॉलेज में कौन आएगा, कॉलेज में कोई नहीं आएगा अभी, कोरोना काल में कोई नहीं आएगा, ऑनलाइन कोरोना ही काल में होगा। कोई नहीं आएगा, ऑनलाइन ही जो होगा, ऑनलाइन ही अच्छा सर। होगा। ऑनलाइन अच्छा है, सामने होगा तो प्रॉब्लम होगा बहुत सारा लोग को। कॉलेज में अच्छा सर। ऑनलाइन ही ठीक है। हम्म। तो प्लेसमेंट के लिए एसेंचर का प्रिपरेशन सर कैसा पैकेज कितना है? चल रहा है प्लेसमेंट? एक्सेंचर का पैकेज 3.35 ऐसे कुछ होगा, उसका तो 3.35 था शायद, उसका वही होगा। यही तुम बैठ रहे हो आफरीन? क्या सर? कैसे? आफरीन आफरीन को पूछ रहे, हाँ तुम बैठ रहे हो एक्सेंचर में? सर आप क्या बोल रहे, तुम भरे थे पूछ रहे हो। हाँ बैठ रही है। हाँ हाँ हाँ, बोले तुम, हाँ जो तुम भरे थे। सर अभी अभी तक नहीं भरे सर, भरेंगे अभी थोड़ी देर बाद शाम को। अरे भर लो, अरे शाम और दोपहर ये करते करते जब निकल जाएगा तब समझोगे, शाम दोपहर करते करते। हाँ हाँ भर लेगा थोड़ी देर। अरे नौकरी के लिए लोग पागल की तरह घूम रहे हैं। सर और हम लोग भी घूम ही रहे हैं पागल की तरह, आप ऐसा मत सोचिएगा। हाँ सभी, अरे इस टाइम का होता है ऐसे, इस टाइम अभी तो सर और अब टेंशन लग है ना, जाएगा तो। फाइनल ईयर में हम लोग। फाइनल ईयर में नहीं, अभी 6 में हो तुम। हाँ सर, मतलब सेशन थोड़ा लेट चल रहा है। हाँ, और सेशन थोड़ा लेट है तुम लोगों का। जो दिख है 20.1। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं।
ओके, तो आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस हम लोग उसमें भर लिए हैं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग एक नोटपैड ऑन करके उसका नोटपैड ऑन करते हैं, तो उसमें कमेंट लिखेंगे। एक बार रुको, मेरा ये हैंग हो गया था। तो अभी स्विच का क्या है कि हम लोग आईपी एड्रेस जो है कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। तो इसके बाद क्या है, हम लोग स्विच जो है, स्विच का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो स्विच का कॉन्फ़िगरेशन, तो लेट हम लोग लिखते हैं कि कॉन्फ़िग टी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ये तो जानते हो, कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम यूजर मोड टू द, फ्रॉम प्रिविलेज मोड टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड, इसलिए हम लोग कॉन्फ़िग टी यूज करते हैं। अब होस्ट नेम को हम चेंज करने चाहते हैं, तो लेट्स से हम होस्ट नेम को नाम देंगे MLS, मल्टी लेयर स्विच बोल के होस्ट नेम जो है उसका नाम देंगे हम MLS बोल के। तो MLS दिए। अब VLAN 10 सेल्स, तो मतलब VLAN जो है हम लोग लिखेंगे VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10, और VLAN 10 जो है उसमें हम लोग सेल्स को असाइन करेंगे। तो नेम सेल्स, ओके। और VLAN 20 ऐसे ही सेम एज दैट, हम लोग VLAN 20 जो है VLAN 20 का करेंगे मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के लिए किए। अब इंट हम लोग को रेंज फिक्स कर देना होगा। अब देखो, ये जो दोनों सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम का इंटरफेस को हम लोग को देखना है। इंटरफेस क्या है, ये दोनों का एक है हम लोग का 1/0/1 और इसका होगा 1/0/2, ये दोनों इंटरफेस है। तो हम लोग इधर लिखेंगे इंट रेंज G 1/0/1 एंड 1/0/2। तो हम लोग नेक्स्ट में ही है तो इसलिए 2 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। तो 2, देन स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। सर ये बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकल? ये बोले ना कि VLAN जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लैन, जो वर्चुअल लैन मतलब क्या है कि हम लोग एक ही स्विच में, एक ही स्विच यूज करके, अब एक ही स्विच में हम लोग अगर ये जो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग किए, ठीक है, तो जैसे ये सेल्स डिपार्टमेंट अलग की, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग किए, अब एक स्विच के अंदर अगर कनेक्टेड होगा तो क्या है, ये जो हम लोग का सिस्टम, अब ये सिस्टम इसके साथ भी कम्युनिकेट कर पाएगा, मतलब सारा जितना सिस्टम्स है, सब सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। देखो हम सर अगर ये तो पहले हम लोग कम्युनिकेट किए थे करते ना। हैं तो ये अलग सा, मतलब ये जो है, अब देखो तुम किए थे, हम लोगों के इंटरविलियन का जो कॉन्सेप्ट है तीनों टाइप का कॉन्सेप्ट में है। एक होता है जो ट्रेडिशनल मेथड हम देखा है, तो ट्रेडिशनल मेथड, एक था राउटर ऑन द स्टिक, वो भी हम दिखाए। ये है मल्टी लेयर स्विच यूज करके, ये जो है ये मल्टी लेयर स्विच है, ये जो है मल्टी लेयर स्विच यूज करके हम नहीं दिखाए थे, वो वाला दिखाने के लिए हम इसलिए दिखा रहे हैं कि मल्टी लेयर स्विच यूज करके कैसे दिखता है, कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर चेक कर, अभी इस टाइम अगर हम चेक करते हैं तो देखो पिंग 192.168.20.2,
अब विलेन इंटर विलेन का कॉन्सेप्ट में है, तो देखो हर टाइम क्या होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा देगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अब इसके बीच में क्या है, हम कम्युनिकेशन करेंगे, तो यही दिखाने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तो स्विच पोर्ट एक्सेस हम इसका लास्ट में मानो इसको चेंज कर देते हैं। रुको, सर एक प्लेसमेंट का क्वेश्चन था सर। हाँ सर बढ़िया बोलो। कंपनी कौन सी है? ये सर्विस बेस्ड कंपनी सब में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सब में। देखो एक ही, लगभग एक ही है। तो हम्म, इसमें अगर देखना है तो तुम ट्राई कर सकते हो कि इन्फोसिस वगैरह, इन्फोसिस आईबीएम ये थोड़ा बेहतर है। इन्फोसिस आईबीएम ये थोड़ा अच्छा होगा। बट ये सब तो तुम अगर थोड़ा अच्छे कोडिंग में अच्छे लगे, कि कोडिंग का अच्छा हो, नॉलेज हो, तो तुम ट्राई कर सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सैलरी भी ज्यादा है, और हाँ मगर थोड़ा तुमको नॉलेजेबल होना चाहिए बहुत अच्छा, क्योंकि नहीं तो उसमें चांस नहीं मिलेगा। तुम दोनों अप्लाई कर सकते हो, तुम दोनों तो कोडिंग का तो नॉलेज है, अच्छा तो आखिरी में नॉलेज सर है प्रो है। दोनों का। सर आपको पता है सामने वाला बंदा बैठा है लेके। हम जानते हैं, हमको बोला है, हम हम्म, जानते हैं। जनाब का इन्फोसिस में हो गया है। वो हाँ जानते हैं, उसका उसके बारे में जानते हैं, वो बोले हैं। यस सर। तो और पूरा तुम्हारा भी हो जाएगा। ये इससे ही पूछा था, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से ही। वही जगह से पूछता है, वही जगह से पूछता है। वही तो बेसिक कॉन्सेप्ट का जगह है ना, डेटा यस डेटा सर। स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का। हम्म। एल्गोरिदम का तो हम मैक्सिमम एल्गोरिदम कवर किए थे उस टाइम, मैक्सिमम एल्गोरिदम तुम लोग का टाइम में कवर कर पाए थे हम, हाँ सर, जो तुम आप लोग डायनामिक उस टाइम में। प्रोग्रामिंग पढ़ाए थे वही कोडिंग में पूछता है, कोडिंग राउंड में। और इंटरव्यू राउंड में सॉर्टिंग वॉर्टिंग, बीएफएस डीएफएस, ये सब। अच्छा अच्छा, ओके। तो जो जगह में थे हम बाद में आ रहे हैं, तो इसका जो है हम लोग पोर्ट जो है, रेंज रेंज फर्स्ट फिक्स कर दिए, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, तो इसका VLAN 10 देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। सेम एज दैट हम लोग को इसके लिए भी एक को करना होगा, सेम एज दैट हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी करना होगा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए हम लोग देख लेंगे 1/0/3 देन 1/0/4। तो ये जो है हम लोग कर दिए, और ये जो है VLAN 20। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल इसको हम लोग स्विच के अंदर जाके कॉपी करेंगे। अच्छा, ये चीज है। अब जितना हम स्विच यूज किए थे, देखो उस स्विच में कैसे कोई पावर ऑन करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं लगता था, ऐसे नॉर्मल जाते थे, हम लोग पेस्ट कर देते थे, बट कंप्लीट हो जाता था। बट नाउ ये जो है मल्टी लेयर स्विच अगर यूज करेंगे, तो मल्टी लेयर स्विच में क्या है, मुझे एक पावर सोर्स देना है, और पावर सोर्स देके उसको ऑन करना है। ठीक है, तो पावर सोर्स देके ऑन करने के मीन्स, देखो एसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई मुझे देना है, एक एसी सर पावर मैं सप्लाई। एंड देन बोलो, मैंने तो पेस्ट किया तो हो गया। तुम पेस्ट किए हो गया, तुम मल्टीलेयर स्विच लिए थे, तो मल्टीलेयर स्विच में कभी नहीं होगा, अगर तुम उसको ऑन करना पड़ता है। स्विच का प्रॉब्लम नहीं किया तो कोई दूसरा स्विच यूज नहीं किया तो। तो लिखा तो है मल्टी लेयर स्विच 0। मल्टीलेयर स्विच 0, आपको मगर स्विच ये 1 क्यों? देना होता है। आपको स्विच 1 लिखा है, मतलब हम हम्म दोनों ने अलग अलग तो यूज हम्म। नहीं किया है। स्विच 1 यूज करना है क्या? हाँ स्विच ऑन यूज करना था। अच्छा तुम रुकिए। उसको डिलीट करो, स्विच ऑन दे दो, उधर हो जाएगा। अच्छा हाँ।
अच्छा नेक्स्ट ना ज्वाइन करना, ये कंप्लीट हो जाएगा अभी कुछ देर बाद ही। अ, ये कट जाएगा, टाइम हो गया है। आज सर कुछ एसेंचर का मीटिंग भी है अभी, ये व्यास मैम भेजी है। आज कब से? कुछ ग्रुप में ही डाली है, पढ़ते हैं।